بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو آیت کریمہ کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص اگر آپ کو کوئی سخت ترین حاجت ہو تو آپ اپنے گھر یا مسجد میں سر ننگا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں تو انشاءاللہ اسی وقت آپ کی حاجت قبول ہوگی۔ جو اشراق کی نماز کے بعد سجدہ کر کے 7 بار پڑھے گا، آیت کریمہ پڑھے گا، اللہ پاک اسے غنی فرما دیں گے۔ جو شخص دشمنوں سے اگر آپ کو خطرہ ہو تو سورج نکلتے وقت آپ رات کے آخری حصہ میں دشمنوں کی ہلاکت کے لیے 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ وہ آپ دشمنوں کی ہلاکت اور اس کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے تو دنیا کی محبت اور ماسوائے اللہ کی عظمت دل میں آ جاتی ہے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ چینی کے برتن پر لکھ کر ایسے شخص کو پلا دے جو ہر وقت بیمار رہتا ہے، وہ پینے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت دل سے جاتی رہے گی۔ جو کوئی کسی ظلم اور ظالم سے ڈرتا ہو اور اس کو فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو امن امان میں رکھیں گے اور دشمن پر غالب ہوگا، حاکم مہربان ہوگا، خوف دل سے جاتا رہے گا۔ جو کسی مشکل کے واسطے اگر اس کو پڑھے گا اللہ پاک اس کی ہر طرح کی مشکل کو دور کر دیں گے۔ جو اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو رزق کی فراخی نصیب عطا فرمائیں گے۔ جو کوئی فکر و فاقہ سے پریشان ہو کر کے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ پاک اسے راحت عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کی فضیلت ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک دنیا میں آپ کو یہ انعامات سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی ان انعامات سے آپ کو نوازتے ہیں۔ آج میں آپ کو اور اس کے ساتھ چند میں آپ کو وصیتیں بھی کرتا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیتیں کی، فقیرانہ درویشانہ زندگی گزاری۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جیسی ہے۔ بہت فقیروں والی زندگی گزاری، حضور علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزرا۔ کہتے ہیں دخلت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ تیرے سارے معاملات کا حسن ہے، تمام زندگی کا جمال یہی ہے کہ تو اللہ سے ڈرا کر۔ یہ حضور نے مجھے فرمایا۔ میں نے عرض کی حضور یہ عمل ہوگا کوئی اور وصیت فرمائیے۔
تو حضور अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक तो कुरान करीम की तिलावत किया करो, दूसरा जिक्रुल्लाह किया करो, आसमान पर तुम्हारा जिक्र होगा और जमीन में तुम्हारे लिए बाइसे नूर है, तुम्हारे मन में चरागा नसीब होगा और तुम्हारे लिए रोशनी होगी इन दो कामों के करने से। कुल तु जिदनी, मैंने अर्ज की इस पर भी अमल होगा कोई और, इरशाद फरमाइए। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे ऊपर ज्यादा खामोशी इख्तियार करना है, ज्यादा बातें ना किया करो, लंबी खामोशी रखा करो। इससे दो फायदे होंगे, एक तो शैतान भाग जाएगा, दूसरा अमले दीन में तुम्हें तकवीयत मिलेगी। ज्यादा बातें करने वाले की जबान फिसलती है, गीबत, चोली, झूठ, बौतान, ये सारे अमराज, ये सारी आफतें जो हैं वो जुबान से अदा होती हैं। इसलिए कहा कि जबान की हिफाजत फरमा। हिफाजत करना ज्यादा लंबी खामोशी और ज्यादा लंबा सुकूत इख्तियार कर देना, इसलिए कि तुम्हें दुनिया में भी फायदा होगा, शैतान भी भाग जाएगा और तेरे दीन में भी तुझे मजबूती मिलेगी। कुल तू जिदनी, कहते हैं रहमत का बारा पड़ रहा था हुजूर अलैहिस्सलाम के, जो है वो मुंह से नूर निकल रहा था। मैंने जोली फैलाई हुई थी, मैंने अर्ज किया हुजूर इस पर भी अमल होगा कोई और, इरशाद फरमाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं तुझे नसीहत करता हूं कि तुम ज्यादा हंसा ना करो, ज्यादा हंसने से गुरेज करो, इसलिए कि ज्यादा हंसने से एक तो दिल मुर्दा हो जाता है और दूसरा चेहरे का जमाल खत्म हो जाता है, चेहरे की रोशनी चली जाती है। ईमानदार के चेहरे पर एक नूर होता है, जो शख्स कह लगाकर हंसने वाला होता है उसका वो नूर रुखसत हो जाता है। इस्लाम ने मुस्कुराने से मना नहीं किया, हुजूर अलैहिस्सलाम तबस्सुम की आदत रखते थे। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पर लाखों सलाम। एक सहाबी फरमाते हैं मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराने वाला किसी शख्स को नहीं देखा। चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती। मुस्कुराना और बात है और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नेकी को छोटा मत समझना, अगरचा कि तुम अपने भाई को खंदा पशानी से ही क्यों नहीं मिलते हो तो ये भी एक नेकी है। मुस्कुराना और बात है, लेकिन हंसना कहे लगाना ये जो है वो दिल को मुर्दा कर देता है। और दिल का मुर्दा होना क्या है? दिल का सख्त हो जाना। अगर किसी का दिल सख्त है तो शरीयत उसको दिले मुर्दा कहती है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया इय्याका व कसरतन दहक, ज्यादा हंसने से बचो। फइन्नहु युमीतुल कल्बा व यसहबु बिनूरिल वजह, दिल को मुर्दा कर देता है और चेहरे की रौनक ले जाता है। कुल तु जिदनी, मैंने अर्ज किया हुजूर कोई और इरशाद फरमाइए। मौज लगी ही है, 12 बट रहा है, अनवार उतर रहे हैं, मस्जिद नबवी का सहन है, हुजूर इरशाद कर रहे हैं और मुंह से फूल जड़ रहे हैं, मुंह से फूल जड़ रहे हैं। और हजरत सईदना अबू ज़र गफ़ारी अपने दामन में समेट रहे हैं। अर्ज फरमाए कोई और भी इरशाद फरमाइए। का लाकुल हक व इन कानुल मुर्रा, ए अबू ज़र फिर हक कहना चाहे कड़वा क्यों ना हो। सच्ची बात कड़वी तो होती है, लेकिन जब सच्ची बात कहोगे तो कई लोग नाराज हो जाएंगे। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश कि मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूँ, समझता हूँ जिसे हक, मैं अबले मस्जिद हूँ, मैं तहजीब का फर्जंद। ये तो सच्ची बात करने से यकीनन बहुत सारे लोग नाराज होंगे, जिनके मफादात पे जद पड़ेगी वो नाराज तो होंगे ही। तो फरमाया ए अबू ज़र कुल हक का, हक कहना चाहे कड़वा ही क्यों ना हो।
कुल्तु जिदनी, मैंने अर्ज की हुजूर ये भी हो गया, कोई और अता फरमाइए। काला तहाफिल्लाहु माताउल, कहा अल्लाह के रास्ते में मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरना कि लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग हम इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग इस लिए करते हैं कि ना करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, नाक नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर, नाक बचाने के लिए बड़ा कुछ कर जाते हैं। नाक रखनी है या कब्र को रोशन रखना है, आखिरत बचाना है या नाक बचानी है। तो ये जो मलामत करने वाले की मलामत के डर से बहुत ज्यादा गुनाहों का इर्तिकाब कर लिया जाता है। फरमाया ला तहफिल्लाहि मलाम। कुल्तु जिदनी, मैंने अर्ज की हुजूर कोई और भी इरशाद फरमाइए। हजरत अबू जर गफारी ने जोली ही फैला ली हुजूर के सामने। अल्लाह अकबर, सही की दलहीज पे खड़ा है, फिर कम क्यों मांगे, आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग। ये कैफियत बनी हुई है हजरत अबू जर गफारी की। कहते हैं मैंने कहा कुल्तु जिदनी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी बात जो मुझे इरशाद फरमाई वो सुनिए। काला लियहजुज़का अलिन्नास मा तालमू मिन नफ्सिका, ए अबू जर, अपने ऐब देखता नहीं ताकि अपने एक देख दूसरों के ऐब देखने का मौका ही न मिले। अपने मन में ही उतर जा, तुझे औरों के अयूब देखने का मौका ही न मिले। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को भी वसीयतें हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप तमाम बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप खूब फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और यही बेहतरीन सदका जारिया है। और आखिर में ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।